Assalamu alaikum. Can we start our today topic? Assalamu alaikum, students. Uh, can we start now? I think 24 participants is enough. Okay. Today our topic is chronic diarrhea without meal absorption. In this topic, there is mostly the functional diarrhea. Functional diarrhea is actual condition we actually dealing. Chronic diarrhea, diarrhea which is last more than 4 weeks or 1 month, we call the chronic diarrhea. And without meal absorptions means no any meal absorption signs is present on the patient. Dr. Shaista actually took the lecture on the meal absorptions and chronic diarrhea with meal absorptions. Now my today topic is the without meal absorption means functional conditions which is causes the chronic diarrhea. Okay. Now, what is the functional diarrhea or diarrhea without meal absorptions? It is mostly the functional diarrhea or the diarrhea predominant irritable bowel syndrome (IBS-D) diarrhea and are highly prevalent disorder that can be difficult to distinguish from the organic causes of chronic diarrhea, which is lasting greater than 4 weeks based on the symptoms alone. Now, definition of diarrhea. Diarrhea is defined as passage of abnormal liquids or uniform stools at an increased frequency. For adults, is typically Western diet's stool weight is more than 200 gram per day can be considered as diarrhea. So there is the important is the stool weight is must be the 200 gram per day. Pseudo diarrhea actually it is not the Pseudo-diarrhea is actually frequency is passage of the small volume of stools is often associated with rectal urgency and according to IBS or proctitis. And fecal incontinency is involuntary passage of rectal and is most often caused by neuromuscular disorders or structural anorectal abnormalities. Pseudo-diarrhea and fecal incontinency occur at prevalence rate comparable to higher than that of the chronic diarrhea and should always be considered the patient with complaining of diarrhea. एक्चुअली इश्यूज क्या हैं इसके अंदर फर्स्ट वन जो है आज के टॉपिक के लिए जो बेसिक हमने अंडरस्टैंड करना है एक तो ये करना है कि डायरिया पेशेंट हमारे पास आते हैं जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं डायरिया के साथ जब आप एग्जामिनेशन करते हैं या लैब्स करवाते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी मेल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स नहीं होते मींस वेट लॉस नहीं है पेशेंट्स को कोई विटामिन ए डी ई के कोई विटामिन डेफिशिएंसीज जिंक डेफिशिएंसीज या कोई भी मिनरल डेफिशिएंसीज इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल और कोई भी पेशेंट वेस्टेड नहीं है कोई वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं है और आपको हिस्ट्री मिलेगी डायरिया की फॉर एग्जांपल मोर देन 1 मंथ की हिस्ट्री मिलेगी आपको डायरिया की तो आपने फर्स्ट वन तो एवेल्युएट करना है कि पेशेंट को स्यूडो डायरिया या फीकल इनकॉन्टिनेंसी तो नहीं है तो फीकल इनकॉन्टिनेंसी क्या है कि सिंपल जो है वो एनल स्फिंक्टर काम नहीं कर रहा और उसकी वजह से जो है वो जो स्टूल कंटेंट्स हैं वो जैसे स्टूल फॉर्मेशंस होती है तो वो मूव आउट हो जाते हैं तो उसके लिए जो है आपको जो है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और एनल जो टोन है वो एक्चुअली आपको चेक करनी है तो बेसिकली इसके अंदर जो बेसिक इश्यूज हैं वो इस वजह से हो रहा है कि स्यूडो डायरिया भी पेशेंट को फॉर एग्जांपल प्रोक्टाइटिस है या इन्फ्लेमेशन है लेकिन उनका वेट जो स्टूल का है वो लेस देन 200 ग्राम होगा पर डे तो बहुत ज्यादा कंटेंट के अंदर मींस डायरिया नहीं आ रहा बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है तो पेशेंट्स कभी भी आपको आकर अगर हिस्ट्री दे रहा है डायरिया की तो इसका लाजमी मतलब नहीं है कि पेशेंट को डायरिया ही हो तो उसके लिए आपको फर्दर एवेल्यूएशन चाहिए उसके लिए कि पेशेंट को एक्चुअल डायरिया है भी या नहीं है What is the IBS? Functional diarrhea जो हम आज डील कर रहे हैं IBS is the irritable bowel syndrome, gastrointestinal syndrome.
characterized by chronic abdominal pain and altered bowel habits and the absence of organic causes. So आज हम बेसिकली डील भी एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक कॉजेज के ऊपर कर रहे हैं। ये नंबर 1 कॉज है आईबीएस फंक्शनल डायरिया के अंदर या क्रॉनिक डायरिया विदाउट मेल एब्जॉर्प्शन में। फर्स्ट डिफरेंशियल जो है वो आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। गॉट इट? प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन लैब टेस्ट, सीबीसी, एल्ब्यूमिन, ईएसआर, सीआरपीज एंड स्टूल एनालिसिस, स्टूल डीआर एंड वाटरी डायरिया, इन्फ्लेमेटरी और फैटी डायरियाज, ये कैटेगराइज करेंगे फर्दर। ब्रिस्टल स्टूल स्केल फॉर्म्स हैं। ब्रिस्टल स्टूल स्केल फॉर्म्स के बेसिकली डायरिया जब भी पेशेंट्स कंप्लेन करता है तो ब्रिस्टल स्केल है जो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जिसमें टाइप 1 से लेकर और टाइप जो है 7 तक इसके अंदर ब्रिस्टल स्केल्स हैं। तो बेसिकली जो है बिल्कुल ही हार्ड सेपरेट पीसेस के अंदर होगा। तो 1 है ये सीवियर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, और 4 के अंदर ब्रिस्टल 7 के अंदर सॉरी इसके अंदर बिल्कुल वाटरी कंटेंट्स हो जाते हैं। तो ब्रिस्टल स्केल फॉर्म से ये बेसिकली हम कोलोनोस्कोपी में भी ये स्केल्स यूज करते हैं। इथियोलॉजीज क्या है? रिमेन्स unclear. It's a biophysical it is mostly the etiologies is altered GI modalities, GI hypersensitivity and psychosocial factors. रिकमेंडेशंस हैं बेसिकली कैसे आप जो है आईबीएस को जो है वो क्या रिकमेंडेशंस हैं। आईबीएस को लेबल करने के लिए फर्स्ट वन जो है टेस्ट सीलिक डिजीज का आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन आपके पास होना चाहिए और आईजीए लेवल भी होना चाहिए, कहीं आईजीए डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आप आईजीए नहीं कर सकते तो टीटीजी आईजीए के साथ जो है इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी जो है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज आईजीजी एंड आईजीए दोनों करवा सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो हम मोस्टली इसको जहाँ पर हम आईजीए डेफिशिएंसी सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो हम टीटीजी आईजीए एंड आईजीजी दोनों सेंड करवाते हैं लैब्स में। सेकंड हमारे पास जो है टेस्ट फॉर जार्डिया इन्फेक्शन है यूजिंग एंटीजन टेस्ट टू परफॉर्म पीसीआर और एंटीजन टेस्ट है। तो ये बेसिकली आप ऑर्डर करते हैं कि स्टूल के अंदर जो है जार्डिया इन्फेक्शन के लिए एंटीजन जो है वो लिख कर दिया जाता है। कंसीडर टेस्टिंग फॉर बाइल एसिड डायरिया। बाइल एसिड डायरिया के लिए आपको सैची टेस्ट है, सैची टेस्ट हम आगे कंसीडर करेंगे इसको। तो बाइल एसिड मेल एब्जॉर्प्शंस जो है वो बेसिकली डायरिया करवाती हैं। तो सिंपल जो है वो हर पेशेंट्स जो आपको आईबीएस सस्पेक्टेड हो मींस फंक्शनल डायरिया हो तो उसके अंदर ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस तो लाजमी करवानी है आपने। ठीक है, और इसके अलावा फिकल कैल्प्रोटेक्टिन। फिकल कैल्प्रोटेक्टिन्स क्या है? बेसिकली फिकल कैल्प्रोटेक्टिन्स एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है जो कि स्टूल के अंदर हम ये आखन भेजा जाता है हमारे पास से इस तरह से, और ये बेसिकली जो है लैक्टोफेरिन हमारे पास परफॉर्म नहीं हो रहा अभी, कैल्प्रोटेक्टिन परफॉर्म हो रहा है फिकल, और इनकी वैल्यू अगर 50 से अबव है, 50 टू 250 के अंदर है तो हम कंसीडर करते हैं, 250 से अबव है तो हम आईबीएस आईबीडी सस्पेक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो आईबीडी जो है बेसिकली क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिवाइड होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस तो आप कोलोनोस्कोपी में आपको मिल जाती है या फिर माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस में नॉर्मल मिलती है, लेकिन जो क्रॉन्स डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज में स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है तो कोलोनोस्कोपी उसमें भी नॉर्मल आती है। तो एक ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है फिकल कैल्प्रोटेक्टिन। तो इसके जरिए आप मालूम कर सकते हैं कि पेशेंट जो है कोई इन्फ्लेमेटरी आईबीडी पेशेंट को है या कोई और इन्फेक्शियस डिजीज या ऑर्गेनिक डिजीज को एक्चुअली रूल आउट करने के लिए म्यूकोजल डिजीज को कैल्प्रोटेक्टिन करवाया जाता है। डू नॉट मेजर द ईएसआर। ईएसआर पर देखा है कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन के ऊपर आईबीडी स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। ईएसआर सीआरपी उस टाइम रेज होती है जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन जो है बढ़ जाती है। अगर कैल्प्रोटेक्टिन आपके पास अवेलेबल नहीं है लैक्टोफेरिन तो आप सीआरपी पे फिर भी रिलाई कर सकते हैं, लेकिन ईएसआर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते इसके ऊपर। एंड ओवर पैरासाइट सिंपल जो है वो अगर पेशेंट को ट्रेवल और इमिग्रेशन की हिस्ट्री नहीं है तो नजम गाइडलाइन कहती है कि आपको जो है ओवा पैरासाइट जो है हर पेशेंट को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान में हम लोग मोस्टली प्रैक्टिस करते हैं कि स्टूल डीआर जो है वो करवाया जाता है बेसिकली ओवा एंड पैरासाइट्स को देखने के लिए। तो जो बेसिक टेस्ट हैं मतलब फंक्शनल डायरिया को ऑर्गेनिक डायरिया से सेपरेट करने के लिए, तो एक आप स्टूल डीआर करवा सकते हैं, सेकंड जो है फीकल कैल्प्रोटेक्टिन करवा सकते हैं, थर्ड जो है वो सीआरपी या कैल्प्रोटेक्टिन से एक चीज, और प्रीवियसली हमने टीटीजी आईजीजी देखा है और जार्डिया स्टूल एंटीजन के लिए कंसीडर करेंगे, और बाइल एसिड्स मेल एब्जॉर्प्शन कंसीडर की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसे अवेलेबल नहीं है, सैचिड टेस्ट है जो कि काफी डिफिकल्ट है, पाकिस्तान में परफॉर्म सिर्फ 1-2 लेबोरेटरीज कर रही हैं, तो उसके लिए आप जो है उसको बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स दे सकते हैं, तो उसके अंदर उनका जो है वो टेस्ट चेक किया जा सकता है।
व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ आईबीएस कि आप बेसिकली आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो बेसिकली ये हिस्टोलॉजिकली है, रोम 3 क्राइटेरिया 4 भी आ गया है बेसिकली। तो रोम 3 क्राइटेरिया कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो है वो recurrent abdominal pain or discomfort at least 3 days per month in the last 3 months associated with 2 or more of the following. तो पेन और डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन के साथ ये कोई भी दो सिम्टम्स हो, मीन्स अगर पेन या डिस्कम्फर्ट जो है वो डेफिकेशन के साथ इंप्रूव हो रहा है, मीन्स आप डायरिया की हिस्ट्री ले रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं कि जब आपको वॉशरूम पास कर देते हैं तो उसके बाद आपको इंप्रूव हो रहा है सिम्टम्स या नहीं। एंड सेकंड वन है onset associated with changes in frequency of the stool and onset associated with change in form or appearance of the stools। तो इसके अंदर कोई भी अगर दो सिम्टम्स मिल रहे हैं आपको और लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कंसेक्टिव चल रहे हैं पेशेंट को, और ये कंप्लेन वैसे 6 मंथ से है लेकिन एटलीस्ट 3 मंथ से जो है पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है इन सिम्टम्स की, तो आप उसको इरिटेबल बाउल आईबीएस के अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगेन कि ये बिल्कुल ऑल्सो यही सिर्फ अप्लाई नहीं होगा, इसके अलावा भी आप जो है अप्लाई करेंगे टेस्ट, लैब टेस्ट अप्लाई करेंगे। डायग्नोसिस जल्दी रेड फ्लैग साइंस बेसिकली पेशेंट्स को जो नोट किए जाएंगे उसमें पेशेंट्स रेड फ्लैग साइंस ये वो साइंस है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ये अगर ये साइंस आ रहे हैं पेशेंट को तो आप आईबीएस सस्पेक्ट नहीं कर सकते पेशेंट्स को, सिंपल ये है। क्योंकि हमारे पास मोस्टली हम लोग जो सिनेरियोस रखते हैं एग्जाम्स में तो उसके अंदर पेशेंट अगर एनीमिक हो, फीवर आ रहा है, ब्लड इन स्टूल है, नॉक्टर्नल सिम्टम्स है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डायरिया, ग्रीसी स्टूल्स आ रहे हैं, 50 ईयर से अबव एज है, रेक्टल मैस कोई पैल्पेबल है और रिकरेंट एंटीबायोटिक्स यूज कर रहा है, ब्लीडिंग से, वेट लॉस है, ये सारे रेड फ्लैग साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डायरिया को जज करने के लिए। तो ये आईबीएस नहीं हो सकते, इसके लिए आपको आईबीएस डायग्नोज करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, एंडोस्कोपीज चाहिए और बाकी लैब सारी चाहिए, क्योंकि ये साइंस जो है इंडिकेट कर रहे हैं, कोई भी एक साइन भी अगर होगा तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को जो है प्रॉब्ली ऑर्गेनिक डिजीज है, इट्स नॉट द फंक्शनल वन। कैप्सूल एंडोस्कोपीज के अंदर विजन्स हैं, लिम्फोमा में किस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन अपीयर होती है और क्रॉन्स में किस तरह लीजन्स जो है फिशर्स अपीयर हो जाते हैं। और ये इलियोस्कोपी कोलोनोस्कोपी के दौरान हम जब इलियम में जाते हैं तो बेसिकली इसमें इस तरह फिशर्स अल्सर्स आ जाते हैं ये टीबी के अंदर, और जो है वो बाकी ये सर्कमफ्रेंशियल अल्सर्स ये भी टीबी की एक है, और ये टेलेंजेक्टेसियास हैं पेशेंट्स को। तो डिफरेंट अपीयरेंस है, मैस है सबमिकोजल, तो मेलिग्नेंसीज कोई हो सकती है फॉर एग्जांपल। तो मींस डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं कि आप इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएसडी डायरेक्ट ट्रीटमेंट्स क्या होगी? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेशेंट्स फर्स्ट तो जो है वो एम्पैथिक रिलेशंस हैं, पेशेंट एंड डॉक्टर्स का एक रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थेरापेटिक एंजाइटी स्ट्रेस, जो बेसिकली जो है सब्सटेंस एब्यूज है और सेक्सुअल एंड फिजिकल एब्यूजेस जो हैं वो बेसिकली उनको एड्रेस करना है थेरापेटिक अप्रोच में। सेकंड डाइटरी रिकमेंडेशंस है, कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन कॉफी, अल्कोहल, फैट्स और गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं। गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स एक्चुअली फूड मैप्स हैं, FODMAP, तो ये एब्रिविएशन हम फर्स्ट आपको बताते हैं उसके बाद में। तो ये बेसिक जो है वो डाइट आपने अवॉइड करने के लिए पेशेंट्स को कहना है कि आप डाइट नहीं ले सकते। फूड मैप क्या है? एक्चुअली फूड मैप एब्रिविएशंस है फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, पोलियोल्स। तो ये डिफरेंट हैं, एप्पल्स है जिस तरह, पीचेस हैं और वाटरमेलन्स है, और पेशेंट को जो है वो ये डिफरेंट हैं फ्रूट्स हैं मोस्टली। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली इनके अंदर लैक्टोज और जो शुगर कंटेंट्स हैं, सिंपल अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ये गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रिलीज कर देते हैं और पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल फ्लैटुलेंसीज और ब्लोटिंग सेंसेशन ज्यादा पेशेंट्स को आने लगती हैं और डायरिया की कंप्लेन करने लगते हैं। तो बेसिकली वो आईबीएस की वजह से हो रहा है। तो ये जो है हम उनको एप्पल्स वगैरह और मिल्क के ज्यादा प्रोडक्ट्स लेने से मना कर देते हैं, योगर्ट्स लाइक। थेरापेटिक अप्रोच क्या है पेशेंट्स को आईबीएस के अंदर? लोप्रामाइड्स देते हैं, कोलेस्टारामिन दे सकते हैं और एलोस्टेरोन है। कोलेस्टारामिन एक्चुअली ये और लेवल के लिए, लेकिन बेसिकली हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो लोप्रामाइड प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, और एलोस्टेरोन। ठीक है। थेरापेटिक अप्रोच पेन अगर पेशेंट को हो रहा है आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में तो डाइसाइक्लोमिन है, एमिट्रिप्टालिन है और टैगोस्टेरॉइड्स हैं, ये आप कर सकते हैं। और थेरापेटिक एंटीबायोटिक्स भी कुछ लोकल एंटीबायोटिक्स जो कि इफेक्ट करती हैं नॉन एब्जॉर्बेबल, उसमें ज्यादातर हम लोग रिफ्लेक्सामिन प्रिस्क्राइब करते हैं। रिफ्लेक्सामिन का इफेक्ट भी देखा गया है इसमें।
थेराप्यूटिक प्रोबायोटिक्स कोई स्टिल जो है वो इसके अंदर इफेक्टिव स्पीशीज नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंस सेकंड। फर्स्ट हमने आईबीएस है, आईबीएस में कोई क्वेश्चन है डॉक्टर हीरा सर? सॉरी, फर्स्ट हमारा फंक्शनल डायरी में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो मालूम करें, मैं नेक्स्ट पे मूव करूं लैक्टोज इंटॉलरेंस पे। चलो ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए बेसिकली जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, सेकंड जो फंक्शनल डायरिया है, फंक्शनल डायरिया में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बाद लैक्टोज इंटॉलरेंस आ जाता है। और लैक्टोज इंटॉलरेंस एक्चुअली लैक्टोलेज एंजाइम्स है, और एंजाइम्स लैक्टेज एंजाइम्स जो कि ब्रुश बॉर्डर्स के ऊपर इंटेस्टाइन के होता है, और ये स्प्लिट करता है लैक्टोलोज को डाइसैकेराइड है जो ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर। तो ये बेसिकली मिल्क के अंदर होता है और पेशेंट इससे डायरिया फील करते हैं, और लेकिन इसमें भी मेल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स पेशेंट को नहीं होते, और पेशेंट जो है वो डायरिया की कंप्लेन से आते हैं। तो मोस्टली चिल्ड्रंस में होते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं। और लैक्टोज इंटॉलरेंस हम ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं जो पेशेंट हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि हम दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ें हम लेते हैं तो उसके बाद हमें डायरिया स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर हम लैक्टोज इंटॉलरेंस सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए फिलहाल तो हम सिंपल जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करवाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है बेसिकली आप स्टूल एसिडिटी देखते हैं, जिसमें स्टूल के अंदर जो लिटमस टेस्ट करवाया जाता है उसमें एसिडिटी आ जाती है, और सेकंड हाइड्रोजन ब्रेड टेस्ट करवाया जा सकता है। थर्ड हमारे पास फंक्शनल डायरिया के अंदर फर्स्ट हमने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम करा, सेकंड हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस की है, थर्ड हमारे पास बाइल एसिड मेल एब्जॉर्प्शन है। बाइल एसिड मेल एब्जॉर्प्शन के अंदर इनियल डिसेक्शंस और इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। ये बेसिकली मींस बाइल एसिड इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली बाइल एसिड्स का अगर नॉर्मल मैकेनिज्म देखा जाए तो स्टूल एसिडिटी एक्चुअली चेक करते हैं। कुछ डायरियाज जो हैं वो कुछ डायरियाज जो हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, कुछ नॉर्मल नेचर होते हैं, और एसिडिटी होते हैं। जो एसिडिटी है इसका मतलब है कि जो वॉशरूम के अंदर है उसके अंदर एसिडिक कंटेंट ज्यादा है। तो मोस्टली जब भी जो भी ग्लूकोज कंटेंट जब एब्जॉर्ब नहीं होता तो वो एसिडिटी जो है बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इनकेफ्लोपैथी का लेक्चर लिया था एक। इनकेफ्लोपैथी के अंदर भी यही इशू था कि जब लैक्टोज पेशेंट को दिया जाता है ओरली तो NH3 को NH4 में कन्वर्ट कर देता था, तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने की वजह से जो स्टूल है वो एसिडिटी में आ जाता है। तो अगर स्टूल डीआर में अगर एसिडिक इन्वायरमेंट दिया हुआ है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से है। गॉट इट डॉक्टर बुशरा? कोई और क्वेश्चंस? थैंक यू। बाइल एसिड मेल एब्जॉर्प्शंस, बाइल एसिड मेल एब्जॉर्प्शंस के अंदर बेसिकली क्या है कि टाइप 1 2 3 डिफरेंट है बाइल एसिड, लेकिन आपको इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि बाइल एसिड्स क्या होते हैं कि ये कॉमन बाइल डक्ट से एक्सक्रीट होते हैं। जब एक्सक्रीशंस के बाद इनकी एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन होती है, मींस जो गट है, गट से दोबारा रीएब्सॉर्ब करके 2/3 जो है वो दोबारा लिवर के अंदर बाइल जाता है। लेकिन अगर वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और ये सारी एब्जॉर्प्शन होती है टर्मिनल इलियम के ऊपर, अगर ये एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम पर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, पेशेंट जो है वो डायरिया की कंप्लेन के साथ पेशेंट्स आएंगे। तो बाइल एसिड मोस्टली इलियम की जहाँ रिसेक्शन हुई हो, लाइक कोई ऑपरेशन के बाद, या कोई टर्मिनल के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाए, लाइक टीबी हो पेशेंट को, या लिम्फोमा हो, या फिर इडियोपैथिक कोई टर्मिनल की डिजीज हो, और या फिर जो है स्मॉल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाए, तो इन सब कंडीशंस के अंदर, या पेशेंट को इवन कोलिसिस्टेमी हो, या आपको मोस्ट कॉमन हिस्ट्री जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलेगी वो कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया है और गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद डायरिया पेशेंट को रहता है, तो मोस्टली बाइल एसिड मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। तो इसकी पैथोलॉजीज क्या है? टाइप 1 जो है डिसफंक्शनल इलियम रिजॉर्ब लेस बाइल एसिड्स, और डिफरेंट पैथोलॉजीज हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, लेकिन आपको जो बेसिक चीज याद करनी है कि इसका जो मैं बताना चाह रहा था, ये सैचेट टेस्ट है। सैचेट स्टैंड फॉर सेलिनो हीमोफोलिक एसिड टॉरिन।
selenium, seleno, Se, H for homo, and C for colic, and A for acid, and T for taurine. तो ये SACHI टेस्ट सिंपल नाम दिया जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है, और अगर रिटेंशन लेस देन 50% होगी तो ट्रेसेस आर कंसीडर एबनॉर्मल। मींस इसके अंदर एक ट्रेसेस हैं, बाइल एसिड्स हैं। ये जो बाइल एसिड्स हैं बेसिकली ये हैं रेडियो एक्टिव बाइल एसिड्स हैं। अगर ये रिटेन लेस देन 15% मींस अगर आपने ओरली बाइल एसिड्स दिए हैं और वो बॉडी के अंदर 15% से भी कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो जो उसको डायरिया हो रहा है वो बाइल एसिड मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। क्या आप पॉइंट समझ गए? ये मतलब ये आपको बुक्स में नेम्स तो शायद मिल जाए, लेकिन ये है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। तो हर किसने अंडरस्टैंड कर लिया? हेलो, बाइल एसिड्स, ये सैचिक टेस्ट है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिएगा। सैचिक टेस्ट एक ये कंपाउंड है एक्चुअली जो दिया जाता है ओरली, और ये बाइल एसिड्स की तरह ही है, ठीक है। और अगर ये लेस देन 50% एब्जॉर्ब होगा, मतलब कि मैंने आपको बताया था 75% जो है वो जितना भी बाइल एसिड है हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 5% कोलोन की तरफ जाता है, सब टर्मिनलियम पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर ये 15% से भी कम एब्जॉर्प्शन हुई और ये सारे का सारा जितना भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो एक्सक्रीट हो गया, तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट को डायरिया हो रहा है वो बाइल एसिड की वजह से हो रहा है। तो आपको बाइल एसिड के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, मींस बाइल एसिड ऐसे एजेंट्स देने पड़ेंगे जो बाइल एसिड डायरिया नहीं करवाएं। ठीक है, थैंक यू। ट्रीटमेंट क्या होगी? बेसिकली बाइल एसिड डायरिया की कोलेस्टारामिन जो हम पाकिस्तान में हमारे पास अवेलेबल भी है, इसका ये कोलेस्टारामिन हम मोस्टली क्विस्ट्रॉन साशे के नाम से आता है, और इसके अलावा कोलेस्टिपोर और कोलिसिवलाम है। ये दो एजेंट्स तो हमारे पास अभी पाकिस्तान में फिलहाल नहीं मिल रहे, बहुत मुश्किल है। और क्विस्ट्रॉन साशे हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हम जो है जब बाइल एसिड डायरिया सस्पेक्ट करते हैं तो क्विस्ट्रॉन दिया जाता है। ये क्या करता है? ये एक्चुअली बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिमिन से ये बाइल एसिड जो डायरिया करवा रही है उस बाइल एसिड को फर्दर बाइंड करके एक्सक्रीट करवाता है। और विटामिन डेफिशिएंसीज अगर पेशेंट्स को हो जाए या तो उसको जो है वो आप फर्दर रिप्लेस करते हैं। कोलेस्टारामिन की डोज 4 ग्राम से और वीकली 4 ग्राम जो है मैक्सिमम 36 ग्राम तक इसको डोज को। थर्ड हमारे पास बाइल एसिड्स के बाद फंक्शनल डायरिया हमने अभी तक 3 कर चुके हैं। एक जो है बाइल एसिड डायरिया से लैक्टोज इंटॉलरेंस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और फोर्थ वन हमारे पास है फैक्टिशियस डायरिया। फैक्टिशियस डायरिया क्या है? एक्चुअली डायरिया कॉज्ड बाय सेक्रेटिव लैक्सेटिव्स यूज्ड और फैक्टिशियस डाइल्यूशन ऑफ द स्टूल। ये बेसिकली है क्या कि पेशेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा कोई डायरिया एजेंट्स ले रहे हैं, और पेशेंट्स को होता है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहती है इस तरह, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लैक्सेटिव्स, और वो आपको हिस्ट्री भी नहीं प्रॉपर दे रहे होते। तो वो ज्यादा लैक्सेटिव लेने के बाद जो है जो खुद ही इंड्यूस किया हुआ डायरिया होता है, तो उसकी वजह से डायरिया होता है। या पेशेंट जो है खुद ही अपने वॉशरूम कलेक्शंस के अंदर जो है वो वाटर मिक्स कर दें कि मैं डायरिया शो करने के लिए, तो ये उसके टेस्ट करवाए जाते हैं। या पेशेंट हाइपोटेंसिव हाइपोकैलेमिक होते हैं, और साइकेट्रिक इश्यूज बेसिकली पेशेंट्स को होते हैं, जिसकी वजह से ये फैक्टिशियस डायरिया होता है। तो इसमें भी मेल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। फिफ्थ है मेडिकेशन एसोसिएटेड डायरिया। कुछ ऐसी मेडिकेशन हैं जो कि डायरिया इंड्यूस करवा देती हैं, तो 3 मंथ से भी ऊपर डायरिया आपको मिल रहा होता है, 1 मंथ से भी। तो ये क्योंकि पेशेंट इन एंटीबायोटिक ये ड्रग्स ले रहे होते हैं उसकी वजह से डायरिया हो रहा होता है, तो इसमें भी आपको मेल एब्जॉर्प्शन के कोई सिम्टम्स नहीं मिल रहे होते। तो लाइक थियोफाइलिन है, फॉर एग्जांपल पेशेंट एक एस्देमा का पेशेंट, वो थियोफाइलिन ले रहा है और थियोफाइलिन की वजह से उन्हें डायरिया हो रहा है, तो पेशेंट को मेल एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा। आप ये समझेंगे कि पेशेंट को प्रॉपर्ली जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आईबीएस है, तो वो आईबीएस नहीं, एक्चुअली ये ड्रग उसको डायरिया करवा रही है। इस तरह ये डिफरेंट एंटासिड्स हैं, लाइक ये हमारे पास मोस्टली आते हैं डिफरेंट एजेंट्स लाइक गेविस्कोन सिरप वगैरह जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं, तो ये भी डायरिया पेशेंट को करवा सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि एनसिड्स हैं, तो ये मोस्ट कॉमन एजेंट्स है कि जो डायरिया इंड्यूस करवा रहे हैं ये एजेंट्स, और पेशेंट जो है हम उसको क्रॉनिक डायरिया में रख रहे होते हैं, लेकिन वो फंक्शनल होता है। मोटिलिटी कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि करवा सकते हैं मोटिलिटी डिसऑर्डर, लाइक हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटिक डायरिया, कार्सिनोइड सिंड्रोम्स, और मेडिकेशंस हैं, कुछ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं। तो कोई भी मोटिलिटी अगर किसी वजह से बढ़ जाती है तो वो भी डायरिया करवाएगा, तो इसके अंदर है।
माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस 7th कॉज है और सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस क्या है कि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन दैट कॉज persistent diarrhea, colonic mucosa appears normal and diagnosis made only by biopsies। तो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक के दो फीचर्स हैं, कोलेजिनियस कोलाइटिस है एंड लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। तो माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस है क्या कि एक पेशेंट को डायरिया हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक पेशेंट को डायरिया हो रहा है, हमने फॉर एग्जांपल उनकी कोलोनोस्कोपी की है, कोलोनोस्कोपी में डॉक्टर साहब ने देखा है कि हम लोगों ने देखा कि उसका म्यूकोसा बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई फीचर्स नहीं है, एक नॉर्मल म्यूकोसा अपीयर हो रहा है। लेकिन जब हमने उसकी हिस्टोपैथोलॉजी ली, उसकी बायोप्सीज ली हैं, तो बायोप्सी के अंदर जो है, बायोप्सी के अंदर जो है वो एबनॉर्मलिटीज आई कि उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई थी, एक इनिशियल स्टेजेस के अंदर थे, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए थे या कोलेजन कोलाइटिस, कोलेजन की थिकनेस बढ़ी हुई थी जो बेसिकली उसे डायरिया करवा रही थी। तो ये भी एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की तरह ट्रीट होता है पेशेंट्स, इसमें मेल एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं मिलती है। तो कुछ थ्योरीज हैं कि ये फर्दर आगे प्रोसीड होकर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कोलोनोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल आती है और इसमें आप सिर्फ बायोप्सीज के ऊपर लेबल कर सकते हैं। तो यही वजह है कि एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है, जब तक आप म्यूकोसल बायोप्सीज नहीं लेंगे या आप कैलप्रोटेक्टिन फीकल कैलप्रोटेक्टिन नहीं करवाएंगे कि उसका कैलप्रोटेक्टिन लेवल 50 से अबव है, या जो है सीरम का सीआरपी लेवल नहीं करवाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ही है या ये आगे चलकर 5 साल 10 साल के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को हो जाता है उसमें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ड्यूडेनल बायोप्सीज के साथ जो कोलोनोस्कोपिक बायोप्सीज भी हों, ताकि ये डायरिया जो है वो एक्सक्लूड हो सके कि ये माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस तो नहीं है। तो ये मोस्ट कॉमन है पेशेंट्स के अंदर। टेक होम पॉइंट्स क्या है, किचन सिंक अपीयरेंस जो है वो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मल्टीपल टेस्ट से आर डन साइमल्टेनियसली इन पेशेंट्स सस्पेक्टेड फंक्शनल डायरिया आईजीएसडी। मतलब कि जिस टाइम पर भी आप एक रूटीन टेस्ट नहीं करवाएं, आपने जो भी सिलिक को सस्पेक्ट करना है, इरिटेबल बाउल या फंक्शनल डायरिया आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप सिलिक को करवाएंगे रूल आउट, जार्डिया को करवाएंगे, स्टूल इन्फ्लेमेटरी मार्कर लाइक कैलप्रोटेक्टिन। तो ये तीन चीजें करवानी बहुत जरूरी है। Empirical trial of bile acid binders is reasonably concomitant for subsequent steps at diagnostic tests of bile acid diarrhea are either not available or widely used. Patient chronic watery diarrhea should be considered for endoscopic evaluation and biopsy to exclude microscopic colitis. तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर सैचिड टेस्ट मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, तो हम इसको एम्पेरिकली जो है वो कोलेस्टायरामिन या जो हम बताया था क्विस्ट्रॉन साशे के नाम से आता है, तो वो हम उसको ट्रायल दे सकते हैं। अगर उस पर पेशेंट रिस्पॉन्स करता है क्विस्ट्रॉन पर, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एम्पेरिकली बाइल एसिड मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। लाइक पेशेंट जो है कोलेस्टेक्टमी पहले पेशेंट की हुई हो या कोई गॉलब्लैडर रिमूव हुआ हो, मींस के कोई और टर्मिनल की डिजीज हो, या पेशेंट पहले टीबी एब्डोमेन की वजह से ट्रीट हो चुका हो तो वो डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये बाइल एसिड डायरिया हुआ। सेकंड ये है कि जब आपको एंडोस्कोपी करवाएं और उसकी बायोप्सीज, कोलोनिक बायोप्सी बहुत जरूरी है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस को एक्सक्लूड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो मालूम कर लीजिएगा। What is the kitchen sink approach? Kitchen sink approach. Patient to avoid kitchen sink approach, where the multiple tests are done simultaneously in patients suspected with functional diarrhea or IBSD. ये किचन सिंक क्या है एक्चुअली अप्रोच के, कोई एग्जाम के लिए आपसे तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली एक पेशेंट अगर डायरिया के साथ आता है तो हर पेशेंट्स के लिए जो है वो सेम के आप टीबी एब्डोमेन के लिए जो है वो रूल आउट करना, लाइक सीटी स्कैन्स करवाने, या दूसरा एक कॉमन है एक सीबीसी ईएसआर और सिंपल एक इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, और हर किसी को आईबीएस की तरह डायग्नोज करके रख देना। क्योंकि आप देखें ऑर्गेनिक डिजीजेस जितनी भी हैं वो सबसे पहले विदाउट मेल एब्जॉर्प्शन, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को टीबी एब्डोमेन भी है तो इनिशियल स्टेजेस में वो मेल एब्जॉर्प्शन के साथ प्रेजेंट नहीं करेगा, वो पेशेंट इनिशियली विदाउट मेल एब्जॉर्प्शन क्रोनिक डायरिया के साथ ही प्रेजेंट करेगा। लेकिन जिस तरह टाइम पास होता जाएगा वो क्रोनिक डायरिया उसको वेट लॉस में भी ले जाएगा, उसके मेल एब्जॉर्प्शन के अदर फीचर्स भी आने लगेंगे। तो मींस के आप जो है वो अपने आप को एक बॉक्स के अंदर सिंपल जो है कंटेन नहीं कर सकते,
अगर जब तक पेशेंट्स को जो प्रॉपर टेस्टिंग और पेशेंट के लिहाज से उसकी जो हिस्ट्री को देखते हुए प्रॉपर टेस्टिंग ना हो, तो वो बेसिकली आपको जो है वो फर्दर गाइड करेगी किस तरह आपको फर्दर अप्रोच करना है। अब फंक्शनल डायरिया कंप्लीट हो चुका है। फंक्शनल डायरिया के अंदर आप डिफरेंशियल अगर आपसे पूछे जाएं तो क्या क्या हो सकते हैं? मेरा ख्याल है मैंने 7 डिफरेंशियल बताए हैं, और 7 डिफरेंशियल एक एक स्टूडेंट बताता जाए जल्दी से। क्या फंक्शनल डायरिया में आईबीएस? ओके गुड, फिर सेकंड lactose intolerance, good. Third, microscopic colitis, okay, okay. Bile acid malabsorptions, medication induced, good. Factitious, good. Motility disorder, good. तो आपको बेसिकली इनके डिफरेंशियल पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, एक्सीलेंट। तो ये सब जो है वो कॉजेज हैं, या जितने भी आपके बुक्स के अंदर कॉजेज लिखे हुए हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक डिजीजेस को मैटर करते हैं। और आप देखेंगे कि आपके इवन हॉस्टल्स में और पेडियाट्रिक्स में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक डायरिया और आईबीएस कर हम उनको लेबल किया होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, और वो कंटिन्यूअसली लोप्रामाइड्स लाइक लोमोटिल टेबलेट्स और इमोडियम ले रहे होते हैं। और कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे भी देखेंगे जो पर डे जो है 3 टेबलेट्स भी यूज कर रहे होते हैं। और वो जैसे कुछ सोचते हैं तो कह रहे हैं कि डायरिया की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। नो डाउट कि हो सकता है कि आईबीएस ही हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम खुद ही है, आईबीएस भी, और सेकंड माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस जो है, लैक्टोज, सब इम्पोर्टेंट ही है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो बेसिकली जो है हाउ यू डिफरेंशिएट फ्रॉम द फंक्शनल डायरिया फ्रॉम ऑर्गेनिक डिजीजेस, जो बेसिक डायरिया है उसको किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और डिफरेंशियली इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप रखेंगे उसके अंदर कि जब पेशेंट जो है आप इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कि आप फिकल कैलप्रोटेक्टिन है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट। और सेकंड वन जो है वो पेशेंट्स के लिए कोलोनोस्कोपीज हैं, बायोप्सीज हैं, इसके अलावा जो है सीबीसी करवाना, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। मींस बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्गेनिक को वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज को, फंक्शनल को वर्सेस जो है ऑर्गेनिक कॉजेज को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएं। सिंपल हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर पेशेंट जो है और यंग पेशेंट है और कोई मेल एब्जॉर्प्शन नहीं है अगर पेशेंट को, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो आईबीएस हैं अब सारी जिंदगी आप लोप्रामाइड लेते रहें, बल्कि जो है हो सकता है कि वो सीलियक डिजीज के साथ पेशेंट हो तो टीटीजी आईजीए करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरथायराइडिज्म को रूल आउट करना, और जो है वो फिकल कैलप्रोटेक्टेंस करवाना, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस के लिए बायोप्सीज होना, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो एक फंक्शनल डायरिया या आईबीएस जो है वो अगर पेशेंट न्यूली डायग्नोस्ड है और ऐसा पेशेंट जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो एग्जाम के अंदर आपके मोस्टली टॉपिक्स हम लोगों ने रखे हुए होते हैं, जिस तरह के कोई यंग पेशेंट है वो प्रेजेंट किया है, उसने डायरिया के साथ लास्ट 3 मंथ से होता है और आपने उनको लोप्रामाइड्स दी हैं, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो रिस्पॉन्ड अगर नहीं पेशेंट कर रहा तो फिर आप क्या उसके लिए करेंगे। तो डेफिनेटली जो है आपके लिए ये सब टेस्ट होंगे, जो भी सिनेरियो में दिया हुआ है वो ठीक है, जो नहीं दिए हुए वो आप फर्दर चेक करेंगे कि पेशेंट को सीलिक के लिए चेक कर लिया है, फिकल कैलप्रोटेक्टिन करवा ली है आईबीडी को रूल आउट करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। सेकंड जो है आपने कोलोनोस्कोपीज और एंडोस्कोपीज हो चुकी हैं, उसकी बायोप्सीज हो गई हैं, या स्टूल डीआर हो गया, ओवा पैरासाइट्स को चेक करने के लिए। तो ये सारी जो है वो डिफरेंट स्टेप्स की इन्वेस्टिगेशंस हैं जो उनको रूल आउट करना लाजमी है। तो लाजमी है कि अगर मेल एब्जॉर्प्शन पेशेंट में नहीं है तो आप उसके लिए आस करें। नहीं, सिंपल बायोप्सीज के ऊपर नहीं कर सकते हम लोग, बेस्ट डायग्नोस्टिक्स है ओनली फॉर द बायोप्सी, डेफिनेटली माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस तो बायोप्सीज पर ही आएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस कभी भी जो कैटेगराइज होती हैं वो नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव के अंदर होती है, तो हमेशा नॉन इन्वेसिव टॉप पर होती है। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट अगर आपके पास प्रेजेंट किया आप डायरेक्टली एंडोस्कोपिक बायोप्सीज के ऊपर
चले जाएं। पहले नॉन इन्वेसिव प्रॉपर होती है, मीन्स आपने टीटीजी आईजी सिलिक के लिए करवाना है, आईजीजी करवाना है, स्टूल डीआर करवा सकते हैं ओवर पैरासाइट्स के लिए, स्टूल फॉर जार्डिया एंटीजन करवा सकते हैं, फिर स्टूल फीकल कैल्प्रोटेक्टिन करवा रहे हैं आप। तो सीबीसी के जरिए और कुछ आप देखना चाह रहे हैं कि पेशेंट एनीमिक और कोई और मिल रहा है, हाइपरथायराइड को चेक कर रहे हैं तो कोई और भी इश्यूज मिल रहे हैं, अगर ये सारी चीजें नेगेटिव हैं तो फिर आपकी एंडोस्कोपीज और माइक्रोस्कोपी कोलाइटिस के लिए सर मैं कोलोन करूंगी और इसमें बायोप्सीज लेंगे। मींस स्टेप वाइज अप्रोच है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।